Today we have on board our Associate Dean Dr. D'Souza, Ms. Seena Dahiya, and Dr. Rajiv Ranjan. I welcome you all. आपकी करियर से रिलेटेड कंफ्यूजन का जवाब जानने के लिए मैं आशा करती हूँ आप हमें ध्यान से सुनेंगे. So with all this, I welcome you once again on board, and I request Seena ma'am to take it further and wish you all the best. Thank you. Thank you, Payal ma'am. As this webinar is being conducted by Nirvan University, Jaipur, so I'll be sharing something about the university with the students so that they do know about our institution. Nirvan University, Jaipur is established by the government of Rajasthan via Act number 2 of 2017 and recognized under Section 2F of UGC Act 9. Nirvan University is in its infancy and growing remarkably under the able leadership of Dr. SLC Haag, Honorable Chairperson NUJ, Professor Arvind Kumar Agarwal, Honorable President NUJ, and Professor Prashant Beniwal, the eminent registrar of NUJ. It has 13 faculties, 17 schools, and is currently running 70 programs under diploma, undergraduation, post-graduation, and PhD degrees. NUJ is a successful venture of Nirvan Charitable Trust, which is the parent organization of several successful academic institutes and hospitals in and around Jaipur. In its short tenure, NUJ has embarked a niche amongst reputed higher education institutes in Jaipur and is a prominent choice for higher education among the students. Our university aims to empower future generation through quality education. The university implies innovative teaching learning methodologies and provides a conducive environment to the students for their overall development. The curriculum at NUJ is student-centric, it is diverse, and yet it is very flexible for the students. Students at the university are encouraged to participate in curricular as well as extracurricular activities so that they can be groomed holistically. At NUJ, we emphasize on skill development through industry and institution collaborations so that we can prepare our students for the global job opportunities. The competent environment at NUJ prepares the student on a professional as well as personal level. The university strongly believes that education is the manifestation of perfection already in man. This was a statement given by Swami Vivekananda. And at NUJ, we envision to nurture and amplify that perfection through and through. The salient features of our university are, we have a very lush green campus, we have a modern infrastructure, highly qualified and committed faculty members, high-tech labs, a very dedicated placement cell, a reputed research cell. We impart education through innovative teaching learning methodologies. Our campus is Wi-Fi enabled as well as the hostel is Wi-Fi enabled. We have a separate hostel for boys and girls. We provide transportation facilities to our students and faculty members. And we also provide several sports facilities for our students. To Dr. Rajiv Ranjan. Thank you, Dr. Reena. Thank you, ma'am. Very nicely, ma'am has explained about our university, and they have also emphasized on what the facility we are providing under our premises. And ma'am has very nicely explained all the curricular and extracurricular activities provided by our university and all the Nirvan Charitable Trust under which our university is running. Thank you, ma'am. Thank you once again. And thank you all the organizing committee and particularly Payal ma'am or Sir Nakul sir. Thank you. As our topic is discussed today, we are having this workshop on the career counseling scope. What are the career counseling and what are the scope of the degree and the certificate and diploma you are pursuing? जितनी students हमारे आज के सेशन में जुड़े हुए हैं और जो particularly the students who are pursuing the degree after 12th, तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि 12th के बाद we have हम एक डायलेमा में होते हैं. After when we complete 12th, we have a lot of opportunity, a lot of obstacle also. अक्सर स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि 12th के बाद करना क्या है. और पर्टिकुलरली ये जो विलेज ग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जहां पे पर्टिकुलर करियर काउंसलिंग का कोई स्कोप नहीं होता, उस विलेज में या सब अर्बन एरिया में स्टूडेंट्स को ये बताने वाला कोई नहीं होता है कि कौन से कोर्स आप करोगे तो आपकी जो आपका फ्यूचर होगा वो बेटर होगा, ब्राइट होगा. पर्टिकुलरली हम
अभी तक जो 12th के बाद की जो ट्रेडिशनल जो स्कोप रहा है वो 4 भाग में हम डिस्क्राइब करते हैं, 3 भाग में। पर्टिकुलर जो साइंस बैकग्राउंड था उनमें 2 पार्ट डिवाइड होता है, पहला मैथ से, दूसरा बायो से। नेक्स्ट होता है आर्ट का स्ट्रीम होता है, और उसके नेक्स्ट होता है कॉमर्स का। तो जब पर्टिकुलरली कोई बच्चा साइंस सिलेक्ट करता है, उसमें अगर मैथ सिलेक्ट करता है, तो उसकी ये पॉसिबिलिटी होती है कि द स्टूडेंट विल गो इन, दे विल बिकम एन इंजीनियर, आर्किटेक्ट। अगर स्टूडेंट जो है वो बायो अडॉप्ट करता है, तो वो ये सोचता है कि या तो वो डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस करेगा, बीडीएस करेगा, वेटनरी करेगा, बी फार्मा करेगा, फॉरेस्ट्री करेगा, एग्रीकल्चर करेगा। ये ट्रेडिशनल है जो ऑलमोस्ट 20 ईयर से चले आ रहे हैं ये कोर्सेज। दिस ऑल कोर्सेज आर कमिंग लास्ट 20 ईयर्स इन आवर सोसाइटी। और अगर आप इफ यू अडॉप्ट आर्ट, अगर आप बीए करते हो, उसके बाद आफ्टर +2 बीए करते हो, फॉर एग्जांपल बीए सोशियोलॉजी करते हो, बीए साइकोलॉजी करते हो, तो एक दिमाग में ये लोगों को रहता है कि आप यू वांट टू बिकम अ टीचर। एक जो जनरल आइडिया है, यू आर गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू आर गोइंग फॉर द स्टेट सर्विसेज। अगर आप कॉमर्स लेते हो, अगर आप बीकॉम करते हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, आईसीडब्ल्यूए, कॉमर्स अकाउंटेंसी, इस तरह की चीजें होती है। लेकिन अब क्या है कि अब एक कोर्सेज अब जो उभर के आ रहा है वो आ रहा है बी वोक, उसको कहते हैं बैचलर इन वोकेशन। उसमें क्या हो गया कि जो बैचलर इन वोकेशन कोर्सेज आई है, उसमें इसके अलावा बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बायो लिया, फॉर एग्जांपल आपने अगर बायो लिया +2, तो आप जो बीएससी ट्रेडिशनल हो रहे थे उसके अलावा बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, उसके अलावा बी फार्मा, बी नर्सिंग, बैचलर बीएससी नर्सिंग जो ऑलरेडी आवर यूनिवर्सिटीज रनिंग द कोर्स बीएससी नर्सिंग। उसके अलावा ओशनोग्राफी, बायोलाइट फोटोग्राफी, बहुत सारी चीजें होती है जो आप अपने इंटरेस्ट के बेस पे कर सकते हो। तो सबसे बड़ी जो चीजें हैं कि जो ऑलरेडी कोर्सेज चल रही थी आफ्टर 12th, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज था उसमें एक बहुत लिमिटेड कोर्सेज होते थे, जहां की आपके पास ऑलरेडी फिक्स एक क्राइटेरिया है कि आपको इसी चीज को करना है और इसमें आगे जाना है। लेकिन अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है। आप अगर बैचलर सिंपल भी करते हो, बीए भी करते हो, तो आज के अलावा एक आपने सुना होगा फॉरेन लैंग्वेज। कितने लोगों ने सुना है फॉरेन लैंग्वेज का स्कोप कितना है? किसी ने सुना है फॉरेन लैंग्वेज के बारे में? आज के टाइम में जैसे जैसे दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, वर्ल्ड के अंदर एमएनसी बढ़ रही है, ज्यादा दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो फॉरेन लैंग्वेज की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है ना? क्योंकि दुनिया के आपस में जो उनके कम्युनिकेशन होती है वो अपने अपने भाषा में होती है। ठीक है ना? फ्रांस अगर कोई कम्युनिकेशन करता है इंडिया के साथ, तो फ्रांस की जो लेटर आती है इंडिया में फ्रेंच में आती है। तो वी हैव अ नीड ऑफ ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है ना, टू ट्रांसलेट द लैंग्वेज इनटू हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच। तो इस तरह के जो नए नए डायमेंशंस, ग्रेजुअली नए नए डायमेंशंस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना? एक जो ट्रेडिशनल कोर्सेज थे वहां पे एक बहुत फिक्स डायमेंशन था, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया कि साइंस होता था, तो अगर आप मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सिविल सर्विसेज, इतना ही था। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हो गई है। अगर आप मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, अगर आपने एक जर्नलिज्म, जो आज का बहुत ज्यादा उभरता हुआ क्षेत्र है, जर्नलिज्म, हॉस्पिटैलिटी, अगर आप सर्विस सेक्टर की बात करो, सर्विस सेक्टर में आओ, जो सेवा देने वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो उसमें एक हॉस्पिटैलिटी बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है। हॉस्पिटैलिटी, एविएशन एंड टूरिज्म, ये 3 जो पार्ट है ये बहुत उभरता क्षेत्र है, क्योंकि इसमें आने वाले दिनों में बहुत सारे स्कोप आ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा जो सोसाइटी है ग्लोबलाइज होगा, ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगे, तो टूरिज्म की डिमांड बढ़ रही है। आज टूरिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वो लोग लेजर के लिए घूमते हैं, शौक के लिए घूमते हैं। जब आप बिजनेस करते हो तब भी आपको बहुत ज्यादा एक दूसरे जगह पे आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और आप कहीं घूमने जाते हो तो आप होटल में स्टे करोगे, आप फ्लाई करते हो तो एविएशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें, नए नए आयाम खुल रहे हैं, इसमें आपकी बहुत सारी संभावनाएं खुलती है। जो बहुत सारे न्यू डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं, उसे बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर आप जर्नलिज्म में मैं दिखाऊं, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी के अलावा जर्नलिज्म में तो बहुत सारे स्कोप है। एंकरिंग होती है, करस्पॉन्डेंस, न्यूज करस्पॉन्डेंस, आप लोग देखते होंगे न्यूज में करस्पॉन्डेंस जो न्यूज रिपोर्ट करता है। रेडियो जॉकी, आपने सुना होगा, बहुत सारे इंडिया के नामचीन हस्ती भी है जो रेडियो जॉकी है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, मल्टीमीडिया एनिमेशन, जो आप बहुत सारे देखते हो, ये एनिमेशन वाले बहुत सारी मूवी आती है, उसमें एनिमेशन की बहुत सारी डिमांड होती है, बीएससी एनिमेशन कोर्स होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेज थे उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज आज के मार्केट में आ गए हैं।
तो करियर काउंसलिंग के द बेसिक gist of career counseling is what is your motto, what is your interest, आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है। सबसे पहले करियर काउंसलिंग का हिस्सा शुरू होता है कि आप करना क्या चाहते हो, आपकी आपकी जो पोटेंशियल है वो क्या है, ठीक है ना, आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप एक्सेल करना चाहते हो, आपकी इंटरेस्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आप लेवल ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो करियर काउंसलर होता है वो आपको बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में बताता है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो और क्या क्या चीजों का ज्यादा स्कोप है, ठीक है। ओके, तो there are so many options in the contemporary scenario besides of traditional courses। तो मैंने फिर से बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल कोर्सेज के अलावा आज के टाइम में बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे, हर फील्ड में बहुत सारे स्कोप है जहां आप चीजों को आप एक्सेल कर सकते हो। चीजें मैं कि एनी क्वेश्चन? Okay, I would also I would request like to Dr. D'Souza here. I would like to invite Dr. D'Souza sir. He will more explain the scope and career counseling. He is a very renowned teacher, sir. Oh, thank you, sir. Thank you, ma'am. And please welcome to Dr. D'Souza sir. I welcome all the participants and special thanks to the organizers, Payal ma'am, Reena ma'am, and Rajiv sir. Thank you, sir. This is really useful. So I request all the delegates, if you have any query, please raise your hand. Use option of raise hand, which is available on Zoom, and mute yourself if anybody is asking any question. I'll let you know that as Mr. Rajiv, Reena madam has already been discussed with you that Nirvan University Jaipur is established in the year of 2017. Yes. So we are multi-faculty universities. We are having few faculties of medical sciences like nursing, dental, and agriculture sciences, management, commerce, hotel management, engineering, and so on. So it is a beautiful multidisciplinary university which is located at Agra Jaipur Highway near the toll plaza, Raja Dhok Toll Plaza. It is located in Bassi. We are residential university. We are also having good facilities of hostels for girls and boys. Both are separate hostels. तो अगर आप, क्योंकि आपने यूजीसी के एनटीए के साथ में जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट किया होगा, इट इज CUET for UG and PG 2022. So I hope you have appeared in the examination of UG, which is conducted by NTA. So we are also having, we are one of the participant of CUET UG program. Okay. So I hope आपने ये सब अपीयर किए होंगे एग्जाम्स। मैं स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एडमिशंस और करियर काउंसलिंग तो आप बता सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आपकी सभी क्वेरीज को लिया जाएगा। आप हैंड रेज करके अपनी क्वेरी पुट अप कर सकते हैं। सर आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर हमारे पास क्या स्कोप है? देबू जी, आप अपने +2 का सब्जेक्ट विषय बताएं। आपका 12वीं कौन से विषय में किया गया? सर बायोलॉजी में। ओके, आप राजस्थान बोर्ड से हैं, जैसा कि आपने बताया आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी है +2 से। तो बायोलॉजी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो अगर यूजी लेवल पे एडमिशन लेना चाहें तो उनके पास काफ़ी मतलब लाइंस हैं। जैसे वो एग्रीकल्चर में यूजी कर सकते हैं, जिसके लिए उनको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। यू हैव टू अपीयर फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज कंडक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और ये एनुअल एग्जाम होता है। इसको जेट भी बोलते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और बायोलॉजी आपका बैकग्राउंड रहा है +2 में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कंडीशन अप्लाइड ये है कि आपके मिनिमम 50% इसमें होने चाहिए +2 में। सेकंड, बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फोरेंसिक साइंस में भी यूजी कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस भी एक अच्छा ऑप्शन है उनके पास, बट अभी क्योंकि फोरेंसिक साइंस में इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, तो आई प्रीफर कि आप एग्रीकल्चर को ऑप्ट कर सकते हैं। एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इट इज एज गुड एज एग्रीकल्चर, so you can also make your career in the field of agri business management,
you can opt BSc Honors Agri Business Management program for your UG. And obviously आपके पास BSc Biology का पास कोर्स का ऑप्शन अवेलेबल है. You can also opt that. You can continue with your biology stream. Other than that, आप लॉ का सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं. LLB करके आप अपना करियर कानून की शिक्षा में बना सकते हैं. BBA करके आप अपना करियर मैनेजमेंट में बना सकते हैं. होटल मैनेजमेंट, अगर आप होटल इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी ऑप्ट कर सकते हैं. इस तरह से आपके पास सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल हैं. बेस्ड ऑन योर पर्सनल इंटरेस्ट, योर परफॉर्मेंस इन +2, यू कैन ऑप्ट एनी वन ऑफ द करियर लाइन. तो ये बेसिकली आप विश्वविद्यालय आए, आप पायल मैडम से, रीना मैडम से मिले, अपने +2 के जो मार्क्स हैं वो भी लेके आए, और आपसे डिस्कस करके हम आपको गाइडेंस दे पाएंगे कि आपको अपना करियर किस फील्ड में बनाना चाहिए. ठीक है दीपू जी, आई होप कि आपकी जो क्वेरी थी उसको रिजोल्व कर दिया है मैंने. Yes, sir. Thank you. वेलकम. यस, आप सभी छात्रों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि निर्वाण विश्वविद्यालय भी NTA द्वारा जो CUET UG 2022 का एग्जाम करवाया जा रहा है उसमें भाग लिया जा रहा है. तो बेसिकली मैं आपको एक सीट मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ जो निर्वाण विश्वविद्यालय की है, जिसमें आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स में एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटीज दिखेगी. तो आप बने रहे. इसके लिए आई रिक्वेस्ट टू प्लीज प्रोवाइड मी प्रिविलेज ऑफ शेयरिंग माय स्क्रीन. माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. इट इज विजिबल फाइल में? Yes, sir. We can see the Yes. Zoom page. Now being a student, you can go for Google and search CUET UG 2022. Okay, just search it on Google and click on first link, CUET UG 2022. Just after clicking, one window will appear that is of Department of Education, Ministry of Education. You can see different notifications and important dates for UG program. Now you can observe the universities option are there. Just click on that. आप यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन पे क्लिक करें. आप इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट इसमें पाएंगे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्विक सर्च का ऑप्शन दिया गया है. आप इसमें सिंपल लिखिए निर्वाण यूनिवर्सिटी, निर्वाण यूनिवर्सिटी एंड एंटर कीजिए. जस्ट बाय पुटिंग एंटर आप देखेंगे कि निर्वाण यूनिवर्सिटी नीचे आपको विजिबल हो जाए. एक ऑप्शन ये भी है कि आप ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑप्शन से जाके भी ले सकते हैं इसको. ठीक है, आई होप कि आपको ये विजिबल होगा निर्वाण यूनिवर्सिटी. Yes, sir. We can see the screen. आप इस हाइपरलिंक को क्लिक कीजिए. Now it is appearing on the home page of this website, Nirvan University Jaipur. अब निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर में you can observe there are first column is of degree, then program, domain and specialization, thereafter eligibility and remarks. So आप देख सकते हैं BCom is available at Nirvan University and you can appear for general test. Some of you are already appeared for this test. BHM, Bachelor of Hotel Management is available with us. Bachelor of Physiotherapy is available. You can appear for general test and can take admission in this program. For eligibility, you should have +2 in physics, chemistry and biology with 50%. Arts in BA, biology, BSc, then geology, then botany and yoga, so on. There are different programs are available. So likewise, you can opt program of your interest. I hope you got my point. And in case you have any query, please contact to university and interact with different experts. They will resolve all your queries. Over to you, ma'am. I would call
end of the session. And thank you so much, Dr. D'Souza, Reena ma'am, and Dr. Rajiv for giving your precious time. I am sure ये webinar आपके लिए काफी useful रहा होगा आप सबके लिए. Thank you so much, participants, and we'll update you for the next webinar very soon. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.